جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، ہے بحر خودی میں ابھی پوشید جزیرے، کھلتے نہیں اس قلز میں خاصا کے اسرار، جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے۔ اس کے بعد ہمارے اسپیکر کوہستان کے سیاسی کلچر کے پیدا کردہ مسائل اور مستقبل پہ گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے میں اس کا شارٹ انٹروڈکشن کروں۔ جنید الرحمن قریشی کا تعلق مہرین کالج پالس سے ہے، میٹرک کراچی مسلم پاپولر سکول سے، ڈی اے ای سول انجینئرنگ میں جناح پولی ٹیکنک کالج کراچی سے، ایم اے سیاسیات کراچی یونیورسٹی سے اور ایل ایل بی وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی سے سن 2014 میں مکمل کیا۔ 18 سال مسلسل کراچی میں گزارے اور اسی طرح کراچی میں 11 سال تک ایک کنسٹرکشن کمپنی میں ملازمت کی۔ 2014 سے اسلام آباد میں اپنی کنسٹرکشن کمپنی جنید اینڈ برز کنسٹرکشن ایکسپرٹ کو اون کر رہے ہیں۔ وکیل ہونے کے علاوہ ایک سماجی ایکٹیوسٹ ہیں۔ کوہستان متحدہ کونسل راولپنڈی اسلام آباد کی سربراہی سر انجام دے رہے ہیں۔ کالج ایکشن کمیٹی کے ایک سرگرم ممبر ہے اور کوہستان نیشنل نیٹ ورک کے بانی اراکین میں سے ہے۔ کوہستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے خواہاں ہے اور ہر قدم کے ساتھ قدم ملانے کو ہر پل تیار ہے جو اس جانب سے اٹھے۔ تو میں اس کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے لمٹ ٹائم میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمان اور تمام حاضرین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ان کی انتھک کوششوں کی وجہ سے آج کا یہ پروگرام کا انعقاد ممکن ہوا۔ اس کے بعد میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ 1976 میں بننے والا ضلع کوہستان شمال اور مشرق میں کشمیر اور گلگت بلتستان کے بارڈر سے لگتا ہے، تو مغرب میں شانگلہ اور سوات سے، جبکہ جنوب میں بڈگرام اور مانسہرہ کو لگتا ہے۔ 7,84,711 آبادی پر مشتمل کوہستان کے 3 اضلاع اور 16 وادیاں ایک سے بڑھ کر ایک قدرتی حسن سے مالا مال پاکستان کا یہ ٹکڑا لوور اپر اور کے پی کوہستان آج کے اس جدید دور میں بھی بنیادی سہولتوں سے تقریباً آری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جنت نظیر علاقہ دنیا کے نظروں سے آج بھی اجل ہے۔ انفراسٹرکچر، تعلیم، صحت اور تفریحی مقامات تک ناپید ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہاں مروجہ غیر موضوع، غیر فعال اور خود ساختہ سیاسی کلچر ہے۔ لہٰذا ہم 21ویں صدی کے دوسرے عشرے کے آخر میں بھی پسماندگی، نوخواندگی اور سماجی پستی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کب تک اس کلچر کے بھینٹ چڑھتے رہیں گے؟ چونکہ آج سارے لکھے پڑھے اور ہمارے معزز اکابرین، بلکہ میں یہ کہوں کہ ستاروں کا کہکشاں زمین پہ اترا ہے، ان کے سامنے میں کوئی تقریر نہیں کر رہا، بلکہ میں آج اپنا درد اور دکھڑا بیان کر رہا ہوں۔ میں گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات کروں گا۔ یاد رہیں کہ ہم وہاں کے کسٹم لاز اور لوکل قوانین کو نہیں بلکہ سیاسی کلچر کو چیلنج کرتے ہیں۔ 90 کی دہائی تک ہمارا سیاسی نظام نیم قبائلی طور پر مختلف شکنجوں میں جکڑتا رہا۔ پھر ایک اور دور کا آغاز ہوا، اس میں ہم نے باہر سے سیاستدانوں کو امپورٹ کیا۔ میں ان کو لیڈرز نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ لیڈ کرنے کے لیے نہیں بلکہ الیکشن لڑنے کے لیے آئے تھے۔ ہمارے ہاں باہر سے فضل حق بھی آیا، کوہستان سے جیت کر وزیر اعلیٰ بھی بنا، مگر اس کے ترجیحات میں کوہستان بالکل نہیں تھا، بلکہ کوہستان سے ان کے
खूनी ताल्लुक़ न होने की वजह से उनके तमाम तरजीहात बाहर थे। फिर अब्बास सरफराज आया, फिर जलगुल, फिर अदनान के नाम से इकबाल भी आया, बल्कि सेव के हलके से एक और गुल भी आया है, उसका नाम मुझे याद नहीं है। मगर मसाइल हमारे उसी तरह के यूं के तू रहे। शायद कुदरती तौर पर वो इस मिट्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, बल्कि वो कोहिस्तान के दर व दीवार से उनका इलेक्शन के बाद कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। वो हारे या जीते, मगर हम समाजी तौर पे ज़रूर हारे। फिर एक तीसरे दौर का आगाज़ नफ़रतों, कदूरतों और हकारतों के तौर पे कुरानंदाज़ी से हुआ। इस तरह कुरानंदाज़ी ने इलाक़े को समाजी, अखलाक़ी, माशरती और सियासी तौर पर खोखला कर दिया। यानी आखिर ज़िक्र तरीक़ेकार ने हमारे इज्तमाइयत, सालिसी और जरगे के अलावा इलाक़े को कौमी धारे से निकालने में रही सही कसर भी पूरी कर दी। कौमियत, लिसानियत और अलाक़ियत की बुनियाद पर चलने वाले झगड़ों की वजह से गुज़श्ता 10 साल से हमारे यहाँ बल्दियाती इलेक्शन आप सब जानते हैं कि नहीं हो सके, जबकि ये पूरा पाकिस्तान में ये सिस्टम काम कर रहा है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि जब से हमारे 3 अज़ला बने हैं, तब से अब तक बाहिमी तनाज़ियात की वजह से नफ़रतों की एक ऐसी हवा चली है कि हमारे कौमी तसव्वुर की जगह नफ़रतों ने डेरे डाल दिए हैं। इन हालात में हमारी लिखी पढ़ी नौजवान नस्ल को आगे आना होगा, कौम को शऊर देना होगा कि हम 3 अज़ला में तकसीम नहीं हुए हैं, बल्कि हमें 3 ज़िलों का दर्जा मिला है। हमें इस चीज़ पे फ़ख्र है कि अब हम सूबे से 3 हिस्से हासिल करेंगे। लिहाजा जैसा कि पाकिस्तान में 4 सूबे, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह होने के बावजूद हम खुद को एक पाकिस्तानी कौम तस्वर करते हैं, इसी तरह हम तीनों ज़िलों के कोहिस्तानी खुद को आज भी भाई भाई समझते हैं। दूसरी तरफ हम कुदरती वसाइल से आज तक मुस्तफीद न हो सके, जबकि मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर हम अपने जंगलात से लेकर क्रोमाइट और कापर तक को बरोकार लाएं तो हमारे माशी हालात तब्दील हो सकते हैं। दूसरी तरफ टूरिज्म के ऐसे पॉइंट्स हैं कि अगर वहां तक एक्सेस हों तो लोग मरी और सौत को भूल जाएंगे। यह भी मैं दावे के साथ कहता हूं। अगर हम कोहिस्तान के मुख्तलिफ नदियों से मुकम्मल पानी को बरोकार लाकर बिजली बनाएं तो मैं ये भी बात भी दावे के साथ कह सकता हूं कि न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि जनूबी एशिया को हम बिजली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ख़ासकर भाषा डैम, दासू डैम, थाकोट डैम, दरिया सिंध और सी पैक के ये सब अल्लाह ताला की तरफ से ये नायाब हमारे पर इनायात हैं। इस सब के बावजूद बासलाहियत क़यादत के बगैर हम कतई तौर पे तरक्की नहीं कर सकते हैं। क़यादत तालीमी इदारों से निकलती है, जबकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला यही है कि तालीमी इदारों की इंतहाई दर्जे की कमी है। इस वक्त हमारे 3 ज़िलों में कोई फंक्शनल कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी तो दूर की बात है कि मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ वो साबिक़ा यूनियन कौंसिल महरीन का इलाका झामरा है। ये झामरा से मुल्हिक़ा 6 और इलाके भी शामिल हैं। इसमें लगभग 400 घरों पर मुश्तमिल इस इलाके में आज भी इस जदीद दौर में कोई प्राइमरी स्कूल तक भी नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं खुद महरूमियों का पैदावार हूँ तो ये बेजा नहीं होगा। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय 15 साल के होने पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मजदूरी के लिए भेजते हैं। इसके लिए यहाँ जो कॉलेज से रिलेटेड 2-4 आदमी बल्कि 8-10 बंदे हैं, ये बखूबी जानते हैं और ये शायद हैं। मेरा बच्चा स्कूल से इसलिए महरूम है कि मेरे लीडर को मेरे इलाके से नहीं बल्कि उनको अपने ज़ाती मफादात से ज़्यादा लगाव था।
दूसरी तरफ कोहिस्तान के बहुत से इलाकों में इंतजामी मशीनरी के एक्सेस न होने की वजह से लोग कानून को सुबह और शाम अपने हाथ में ले लेते हैं, जो कि सालाना सैकड़ों 302 के FIR कटती हैं। बहैसियत कौम दुनिया के सामने ये हमारी तजहीक हैं। इन तमाम मसाइल से निजात दिलाने, इलाके के हुकूक को हासिल करने और इलाके की सही मानों में नुमाइंदगी के लिए लिखी पड़ी बाशऊर और ईमानदार और मुखलिस क़यादत की ज़रूरत है। जबकि हमारा सियासी कल्चर हमें सियासतदान पैदा करके देता है जो कि अगला इलेक्शन का सोचता है, न कि लीडर जो अगली नस्ल का सोच सकें। क्या आप इस वक्त जो लिखा पढ़ा तबका यहां बैठा हुआ है, ये जो नौजवान तबका है, अपने ज़ात का फिक्र करें और कोहिस्तान खुद ब खुद तरक्की के राहों पे गमजन हो सकें? ये मुमकिन है? मेरे ख्याल में हरगिज़ नहीं है। हमें कोहिस्तान के सियासी फ़ज़ाओं से इस जमूद को तोड़कर आईन पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नज़रिए और मंशूर लेकर काम करना होगा। हमें पाकिस्तान के कानून और ज़ाबिते में खुद को और कौम को शऊरी तौर पर ढालना होगा। इसके लिए मौक़े पैदा करने होंगे। इसके लिए हमारा रोल मॉडल जनाब अब्दुल सत्तार खादिम कोहिस्तान हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं। इनसे हम इस्तिफ़ादा कर सकते हैं और हमें इन पे फख्र भी है। आखिर में चलते चलते मैं इतना अर्ज करता चलूं कि अपना तो यही आरजू और तमन्ना है कि खुद रहें या ना रहें, नौजवानों को, अपने नौजवानों को एक सोच दें, अपने कौम को शऊर दें कि आपका तकदीर आप ही के हाथों में है। ये तमाम बातें आप ही के लिए हैं। आने वाला कल भी आपका है, ये कौम भी आपकी है, ये इलाका भी आपका है। हम तो आपको एक विजन दे रहे हैं। इस खाके में आप ही ने एक खुलूस, एक जज्बा और एक अज़म के साथ रंग भरना होगा। उससे भी आखिर में इन अकाबरीन के सामने लबकुशाई के जुर्रत का मैं माजरत करता हूं और अपने गुजारिशात को ख़त्म करने से पहले अपने नौजवान नस्ल को शायर की ज़बान में मैं पैगाम देना चाहता हूं कि चश्म अक़वाम से मख्फी है हकीकत तेरी, है अभी महफली हस्ती को ज़रूरत तेरी, जिंदा रखती है ज़माने को हरारत तेरी, जिंदा रखती है ज़माने को हरारत तेरी, कौकबी किस्मत इम्कान है खिलाफत तेरी। बहुत बहुत शुक्रिया।